Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, remember to wash your hands with soap and water frequently, at least for 20 seconds. Stay indoor. Students, eat well, play well, study well, and sleep well. And most important, stay indoor. Keep yourself safe. Your safety should be your priority. Students, all of you must be in a cheerful mood, ready for your English class. Students, today I am going to continue with Unit 12 of your English grammar book, Nouns, Gender. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 44. Page number 44, Unit 12, Nouns, Gender. Students, in my last video, I had explained about genders. Genders, what are genders? The nouns that differentiates between a male and a female are genders. Nouns that denotes a male are known as masculine gender. Nouns that denotes a female are known as feminine gender. We had studied about 4 types of gender. Masculine gender, nouns denoting the males. Feminine gender, nouns denoting the females. Then the common genders, which refers to both the male and females, like students. Boys are also students, girls are also students. Teachers, sirs are also students and ma'ams are also students. So these are common genders, जिसमें male भी होते हैं and female भी होते हैं. Then the 4th gender was neuter gender. Students, nouns, especially the non-living things, all the non-living things are said to be of the neuter gender. This board, fine, this Bluetooth, this book, all these are not masculine or feminine. इनका कोई gender नहीं. So we call them neuter gender. ये बेटा सब non-living things है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? Neuter gender. So there are 4 types of gender. Masculine gender denoting the males. Feminine genders, those nouns denoting the females. Common genders refers to both male and female, and neuter gender refers to all non-living things. Now students, I am going to start with exercise 1 given on page number 45. So all of you, please pay attention to exercise 1, page number 45. Students, now in this exercise, certain words are given and we need to sort out the words and put them in the right treasure box. फाइन, बेटा वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, ठीक है? अब उन वर्ड्स को 4 बॉक्सेस बने हुए. आई एम नॉट राइटिंग दी वर्ड्स, आई एम जस्ट मेकिंग दी 4 बॉक्सेस. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट बॉक्स इज ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. फर्स्ट बॉक्स बेटा किसका है? मैस्कुलिन जेंडर का है. उन वर्ड्स में से जितने भी बेटा मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स हैं वो हम इसमें लिखेंगे. फाइन. Then the second box is of feminine gender.
We need to select the feminine genders from the words given and write them in this box. Then the third box is of common gender, which refers to both male and female. बेटा common gender में males भी होते हैं and females भी होते हैं. Fine. And then the last box is of neuter gender. All of you ready? Now let's read the words first. Students, the first word is leader. The first word is leader. I'm reading the words given in the box. First I'll read, then we'll be putting these words in the correct boxes. Fine? So the first word is leader. The second is headmistress. The third is cousin. The fourth is milkmaid. Fine. Fifth is wood. Then sixth emperor. Seventh flower. Eighth groom. Ninth queen. 10th doctor. 11th athlete. 12th milkman. 13th neighbor. 14th box. 15th bride. 16th headmaster. 17th paper. 18th king. 19th emperor. And 20th barber. 20 words है. And beta, each box has got 5 blanks. हमें 5 blanks में 5 words select करके डालने. We need to sort out the words. ये सारे मिले हुए हैं, है ना? इसमें masculine भी है, feminine भी है, common भी है, and neuter. So we need to sort them and put them in the correct boxes. Now student, our first word is leader. Leader. The one who leads. जो किसी भी ग्रुप को लीड करता है उसको क्या बोलते हैं? लीडर. और लीडर कौन सा बेटा जेंडर हुआ? लीडर कैन बी अ गर्ल, कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल. तो लीडर आपका किस में आएगा बेटा? कॉमन जेंडर में. सो प्लीज राइट लीडर इन द बॉक्स ऑफ कॉमन जेंडर. राइट लीडर, LEADER. लीडर कौन बेटा? जो किसी भी ग्रुप को लीड करता है. फाइन. सो क्या हुआ? लीडर कॉमन. इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल. हाँ, तो लीडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. इसलिए लीडर बेटा किस ग्रुप में आएगा? कॉमन जेंडर. लीडर इज कॉमन जेंडर बिकॉज इट रिफर्स टू बोथ. किसी हम लेडी को भी लेडी भी लीड कर सकती है, इज इट? एंड कोई मैन भी लीड कर सकता है. तो लीडर विल कम इन कॉमन जेंडर. नाउ द सेकेंड वर्ड इज हेड मिस्ट्रेस. हेड मिस्ट्रेस कौन होता है बेटा? हेड मिस्ट्रेस तो फीमेल होती है और फीमेल फेमिनिन जेंडर. और उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है बेटा? हेड मिस्ट्रेस का हेड मास्टर. सो हम हेड मिस्ट्रेस कहाँ लिखेंगे बेटा? फेमिनिन इन द कॉलम ऑफ, इन द बॉक्स ऑफ feminine gender. So please write head mistress. Head mistress is the feminine gender and the masculine of head mistress is head master. Fine. So head mistress is the feminine gender. जो बेटा प्राइमरी सेक्शन को जो हेड करता है, अगर लेडी है तो हेड मिस्ट्रेस, और प्राइमरी सेक्शन को जो हेड करे वो अगर मेल है तो हेड मास्टर. सो हेड मिस्ट्रेस विल कम इन फेमिनिन जेंडर. सो हेडमिस्ट्रेस क्या है बेटा? फेमिनिन जेंडर. देन द थर्ड वर्ड इज कजिन. कजिन, हुज कजिन?
अंकल का, आंट का बेटा या बेटी हमारी कजिन होती है. कजिन कैन बी अ गर्ल ऑल्सो एंड अ बॉय ऑल्सो. कजिन लड़का भी हो सकती है और अंकल या आंट का लड़का हो सकता है, अंकल या आंट का सन हो सकता है, अंकल या आंट की डॉटर भी हमारी कजिन हो सकती है. तो बेटा कजिन किस में आएगी? कॉमन जेंडर. सो वी राइट कजिन इन कॉमन जेंडर. कजिन कौन होते हैं बेटा? अंकल या आंट का जो सन या डॉटर होता है वो हमारे कजिन. आपके मामा की बेटी, मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल की बेटी आपकी कजिन हो सकती है, मैटरनल अंकल का बेटा आपका कजिन हो सकता है, आपके अंकल चाचा का लड़का आपका कजिन हो सकता है, चाचा की लड़की आपकी कजिन हो सकती है. सो जो भी हमारे ब्लड रिलेटिव्स के सन या डॉटर हैं, हमारे जनरेशन के हैं, तो वो हमारे क्या हुए बेटा? कजिन. तो कजिन कैन बी अ मेल एज वेल एज फीमेल. तो ये किस में आएंगे बेटा? कॉमन जेंडर. सो प्लीज राइट कजिन इन कॉमन जेंडर. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, द फोर्थ वर्ड इज मिल्क मेड. बेटा मिल्क मेड कौन है? हु इज मिल्क मेड? अ लेडी हु ब्रिंग्स मिल्क टू योर हाउस. अगर कोई भी जो दूध वाली है ना, अगर आपको दूध देने लेडी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क मेड. और अगर दूध देने कोई मैन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क मैन. तो मिल्क मेड इज द फेमिनिन जेंडर एंड मिल्क मैन इज द मैस्कुलिन जेंडर. तो मिल्क मेड क्या हुआ बेटा? फेमिनिन जेंडर. मिल्क मेड. So milkmaid, the woman who supplies or brings milk to your house. Fine. So milkmaid कौन बेटा? हिंदी में जिसको हम दूध वाली बोलते हैं. Fine. And the masculine gender of milkmaid is milkman. Fine. So milkmaid आपकी कौन सी जेंडर में आ गई बेटा? Feminine gender. Feminine gender refers to all females, whereas masculine gender refers to all males. Common gender refers to both male and female, and neuter gender refers to all non-living things जो ना male है ना female है. Fine. Now the fourth word is wood. अब बेटा wood का कोई gender है? wood तो non-living thing है, no gender. wood ना male है ना female है, तो wood किस में आ जाएगा बेटा? neuter gender. wood किस में आ गया आपका? neuter gender. Because wood is neither female nor male. तो wood आपका neuter gender में. Now the next word is emperor. King. Emperor king. Emperor किस में आएगा बेटा? Emperor आएगा masculine gender में. और emperor का feminine gender क्या होता है बेटा? Empress. So emperor डिनोट करता है मेल को. सो वी हैव रिटन एम्परर इन द बॉक्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि एम्परर तो मेल होता है और मैस्कुलिन जेंडर है, और एम्प्रेस इसका ऑपोजिट जेंडर फेमिनिन जेंडर है. एम्प्रेस इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ एम्परर. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लावर. हाँ, अ फ्लावर आप देख के बोल सकते हो कि ये बॉय है या गर्ल, इज इट मेल और फीमेल? वी कैन नॉट टेल. सो फ्लावर क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटर जेंडर, नीदर मेल नॉर फीमेल. तो बेटा फ्लावर क्या हो गया आपका? न्यूटर जेंडर. सो फ्लावर इज न्यूटर जेंडर, नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल. तो हम फ्लावर को बेटा किस कॉलम में रखेंगे? न्यूटर जेंडर. Clear? Now students, the next word is groom. Groom कौन होता है? Tell me groom. Groom, the boy who's getting married, जिसको हिंदी में हम दूल्हा बोलते हैं. Groom means दूल्हा. The person who's getting married, the boy who's getting married. तो मेल है, किसमें आ जाएगा बेटा? Masculine gender में. और groom का feminine gender is what? Groom का feminine gender is bride, and bride means dulhan, the girl who's getting married. Groom, the boy who's getting married, and groom का
feminine gender is bride. Bride is the woman who's getting married. Got it? So groom, masculine gender because male को denote कर रहा है ना. Now the next word is queen. Queen, रानी है ना. तो queen क्या है बेटा, किस में आएगी? Masculine, feminine, common or neuter? Everyone knows queen denotes a female. So queen will come in feminine gender. Queen किस में आएगी बेटा? Feminine gender. Queen refers to a female. And queen का masculine gender, opposite gender क्या है बेटा? King. Queen का masculine gender is what? King. So queen refers to feminine, female. तो किस में आई बेटा? Feminine gender. Now the next word is doctor. You all must have visited many doctors and know. कभी आप लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी आप मेल डॉक्टर के पास जाते हैं, isn't it? डॉक्टर कैन बी अ फीमेल और अ मेल, है ना. बहुत सारी आप में से स्टूडेंट्स हैं. सम बॉयज दे वांट टू बिकम डॉक्टर, सम गर्ल्स दे वांट टू बिकम डॉक्टर. तो डॉक्टर तो कॉमन है ना. फीमेल भी डॉक्टर्स होती हैं, मेल भी डॉक्टर्स होते हैं. तो बेटा डॉक्टर किस कॉलम में आएगा? कॉमन जेंडर. डॉक्टर किस में आएगा? कॉमन जेंडर. फाइन, बिकॉज इट रिफर्स टू बोथ मेल्स एंड फीमेल. फाइन. डॉक्टर कैन बी मेल ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो. तो किस में आया बेटा? कॉमन जेंडर. नाउ कम्स एथलीट. एथलीट आप जानते हैं ना, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं. तो एथलीट तो अगेन बॉयज कैन बी एथलीट्स एंड गर्ल्स कैन ऑल्सो बी एथलीट्स. तो दोनों ही स्पोर्ट्स खेलते हैं. जो भी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है वो क्या होता है? स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करता है, वो एथलीट होता है. तो एथलीट इज अगेन अ कॉमन जेंडर. बॉयज ऑल्सो प्ले एंड गर्ल्स ऑल्सो दे प्ले. तो वो एथलीट. एथलीट इज अगेन कॉमन जेंडर बिकॉज इट refers to both male as well as female. Now comes the next word and that is milkman. 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 Milkman का feminine gender क्या है बेटा? Milkmaid. Milkman refers to the man who brings or gives, supplies milk to you, whereas milkmaid is the woman who brings milk to your house, है ना. milkmaid दूध वाली and milkman दूध वाला. fine. so man है तो masculine gender, maid है तो feminine gender and milk is common. so you remember in it this way. now the next word is neighbor. neighbor तो I hope everyone knows. neighbor कौन होता है बेटा? पड़ोसी. and जो नेबर है वो मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है. जो अंकल है हमारे जो पड़ोस में रहते हैं वो भी हमारे नेबर है और उनकी जो वाइफ है वो भी हमारी नेबर है. तो इट रिफर्स टू बोथ द जेंडर्स, दैट इज मेल भी होते हैं एंड फीमेल भी. तो नेबर किस में आ जाएगा बेटा? कॉमन जेंडर. नेबर किस में आ जाएगा बेटा? नेबर किस में आ जाएगा बेटा? कॉमन जेंडर. नेबर किस में आ जाएगा बेटा? कॉमन जेंडर. फाइन. नेबर बोलते हैं शी इज माई नेबर, ही इज माई नेबर. नेबर रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वर्ड इज बॉक्स. कोई भी बॉक्स. अब बॉक्स का कोई जेंडर होता है? नो, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. तो बॉक्स किस में आ गया बेटा? न्यूटर जेंडर. बॉक्स किस में आ गया बेटा? न्यूटर जेंडर. बॉक्स इज न्यूटर जेंडर, neither a male nor a female. Then next comes bride. Bride मतलब the girl who's getting married. So it denotes the female. तो bride आ गया आपका feminine gender में. bride किस में आ गया बेटा? feminine
जेंडर. ब्राइड डिनोट्स अ फीमेल. तो किसमें आया बेटा? फेमिनिन जेंडर, दुल्हन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. एंड ब्राइड का ऑपोजिट जेंडर क्या है? ग्रूम. ब्राइड का ऑपोजिट जेंडर क्या है बेटा? ग्रूम. ब्राइड का ऑपोजिट जेंडर इज हियर ग्रूम. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हेडमास्टर. हेडमास्टर refers to a male. तो masculine gender में headmaster refers to male. तो क्या है बेटा? masculine gender. headmaster refers to male. तो क्या है बेटा? masculine gender. Whereas the feminine gender of headmaster is headmistress. The feminine gender of headmaster is headmistress. Then students, the next word is paper. Paper is neither male nor female. अब paper तो ना मेल है ना फीमेल है, तो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. इसलिए बेटा किस में आ गया? न्यूटर जेंडर. पेपर, बुक, इन सबका कोई जेंडर नहीं है, तो किस में आएगा बेटा? न्यूटर जेंडर. Then the next word is king. King refers to the male, so it is what? Masculine gender. King किसको रिफर करता है? मेल को रिफर करता है. तो क्या हो गया बेटा? मैस्कुलिन जेंडर. और किंग का फेमिनिन जेंडर क्या है बेटा? क्वीन. किंग का फेमिनिन जेंडर क्या है बेटा? क्वीन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्रेस. एम्प्रेस बेटा, एम्प्रेस रिफर्स टू अ फीमेल, तो किस में आ जाएगा? फेमिनिन जेंडर में. और एम्प्रेस का मैस्कुलिन जेंडर क्या है बेटा? एम्परर. एम्परर का फेमिनिन जेंडर क्या है? एम्परर. एम्प्रेस, एम्परर मैस्कुलिन जेंडर एंड एम्प्रेस फेमिनिन जेंडर. गॉट इट? एंड नाउ द लास्ट वर्ड इज बार्बर. स्टूडेंट्स, बार्बर कॉमन जेंडर में आएगा, तो विल मेक, यहाँ पे नीचे स्पेस में आप लिख दीजिए बार्बर. बार्बर इज इन कॉमन जेंडर बिकॉज बार्बर कैन बी मेल ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो, है ना. जो यूनिसेक्स सलून होते हैं उसमें लेडीज भी बाल काटती है, ब्यूटी पार्लर में लेडीज भी बाल काटती है. यूनिसेक्स सलून में तो बेटा मेल और फीमेल दोनों बाल काटते हैं. वेयर एज जो शॉप्स होती हैं उसमें मेल काटते हैं, एंड ब्यूटी पार्लर में जो लेडीज बार्बर होती है दे आर ऑल्सो नोन एज, आप उनको रिफाइंड वे में हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसेस बोलते हैं, बट एक्चुअली द वर्ड इज बार्बर. एंड बार्बर कैन बी मेल ऑल्सो एंड फीमेल. अगर मेल बाल काटे तो वो भी बार्बर, फीमेल बाल काटे तो वो भी बार्बर. गॉट इट? सो आई होप स्टूडेंट्स नाउ you know the different type of genders. Again I'll repeat beta, emperor, and remember children, जितने भी masculine genders होते हैं generally उनका feminine opposite gender होता है. जैसे आप देख सकते हो emperor का feminine gender is what? Empress. groom का feminine gender is what? bride. milkman का feminine gender is what? milkmaid. हेडमास्टर का फेमिनिन जेंडर इज व्हाट? हेडमिस्ट्रेस. किंग का फेमिनिन जेंडर इज क्वीन. सो ऑल दी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स इन लोग के पेयर्स होते हैं. फाइन, दे हैव गॉट अ ऑपोजिट जेंडर. वेयर इज न्यूटर एंड कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर, इनका कोई ऑपोजिट जेंडर नहीं होता है. कॉमन में तो बिकॉज मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, है ना. लाइक लीडर, इट refers to male also, it refers to female also. Cousin can also be a male and cousin can also be a female. Doctor, males are also doctor and females are also doctor. Athlete, boys भी होते हैं, girls भी होती हैं. Neighbor can again be a male. If it's a lady, she's a neighbor. If it's a male, he's also a neighbor. So neighbor is also common, both male and female. Barber is also common, students. Barber can be a lady who cuts the hair and it can be a man who cuts the hair. And neuter gender में बेटा all
नॉन लिविंग थिंग्स जिनका कोई जेंडर नहीं होता, दे आर नीदर मेल नॉर फीमेल, लाइक वुड, फ्लावर, बॉक्स, पेपर, इनका कोई जेंडर नहीं है, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. So students, now I believe कि these are the words, again I am repeating, बेटा जितने भी masculine gender होते हैं उनका opposite gender हमेशा होता है. You keep this in mind. Fine, like mom, nun, father, mother, brother, sister, milkman, milkmaid, है ना. तो लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, जेंटलमैन, लेडी, ड्यूक, डचेस. सो जितने भी मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उनका अपोजिट फेमिनिन जेंडर जरूर होता है. कॉमन जेंडर में बोथ मेन एंड वुमेन. जनरली जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं बेटा वो जनरली किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में आते हैं. लाइक द ऑक्यूपेशन ऑफ इंजीनियर, द ऑक्यूपेशन ऑफ डॉक्टर, टीचर, है ना, बार्बर, ये सब किस में आएंगे बेटा? जनरली कॉमन जेंडर में. बिकॉज आजकल सारे ऑक्यूपेशंस इवन मेल भी करते हैं एंड फीमेल भी. सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन. सो वो किस में आएंगे बेटा? सब कॉमन जेंडर में. वेर एज न्यूटर जेंडर में बेटा वो सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स स्पेशली आएंगी, बट सर्टन लिविंग थिंग्स ऑल्सो. जैसे ट्री, अब ट्री है, ट्री का तो आप ट्री को नहीं बोल सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है. फ्लावर है, आप उसको नहीं बोल सकते हो मेल है कि फीमेल है. लीफ है, नहीं बोल सकते हो. तो कुछ वो चीजें भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं बेटा जो न्यूटर जेंडर में आएगी. बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स वो बेटा इधर मैस्कुलिन जेंडर में होंगे या फेमिनिन जेंडर में. बिकॉज ऑल द एनिमल्स दे ऑल्सो हैव गॉट their masculine gender and feminine gender, isn't it? Fox, vixen, lion, lioness, tiger, tigress, है ना. Tom, Tom किसको बोलते हैं? मेल कैट को. फीमेल इज कैट. डॉग, bitch, है ना. Horse, male. So almost all the animals also have got masculine and feminine genders. And जो पर्सन्स हैं उनके भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स होते हैं, है ना. किंग, क्वीन, एम्परर, एम्प्रेस, मिल्कमैन, मिल्कमेड. सो कीप दिस इन माइंड. स्टूडेंट्स, आई होप नाउ द जेंडर्स आर क्लियर टू यू. देर आर 4 types of gender. The masculine gender which denotes the male, जिसमें बॉयज मैन आएंगे, ब्रदर, है ना, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, एम्परर, किंग, ये सब किसमें आएंगे बेटा? मैस्कुलिन जेंडर में. वंस अगेन आई रिपीट दिस. एम्परर रिफर्स टू अ मेल, तो क्या है बेटा? मैस्कुलिन जेंडर. ग्रूम, द बॉय हु इज गेटिंग मैरिड, अगेन रिफर्स टू अ मेल. व्हाट इट इज? इट इज मैस्कुलिन जेंडर. मिल्कमैन, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क to you, who supplies milk to your house, is known as milkman. Then headmaster, है ना, the head of the primary section. If it's a man, we call him the headmaster. And king, everyone knows king. What is king? So king, and all the masculine genders have got a opposite feminine gender. Emperor का feminine gender, opposite gender is what? Empress. Groom, the opposite जेंडर ऑफ ग्रूम इज ब्राइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना दूल्हा दुल्हन. देन द फेमिनिन जेंडर ऑफ मिल्कमैन इज मिल्कमेड. द फेमिनिन जेंडर ऑफ मिल्कमैन इज मिल्कमेड. देन हेडमास्टर, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हेडमास्टर इज हेडमिस्ट्रेस. Headmistress refers to a lady who is the head of the primary section. If it's a lady, we'll call her headmistress. If it's a man, we'll call it headmaster. Then the feminine gender of king is queen. तो बेटा जनरली जितने भी masculine genders होते हैं उनके feminine genders are there, and then they have got the opposite gender. Then the third gender is the common gender, which refers to both the male and female. And generally बेटा common genders occupations होते हैं, जो men भी करते हैं और women भी करते हैं. मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं. लाइक लीडर, cousins, doctor, athlete, neighbor, barber, and many more. Teacher, engineer, हाँ. So all these
ऑक्यूपेशंस बेटा जनरली किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में स्टूडेंट्स, है ना, जो मेल भी होते हैं और फीमेल भी. And the next is neuter gender beta. And neuter gender refers to all the non-living things like wood, flower, box, paper, board, chalk, anything. हाँ, वो सब किस में आएंगे? न्यूटर जेंडर में. फेमिनिन जेंडर refers to all the females. Fine. And keep in mind that feminine gender has also got the opposite masculine gender. Masculine, feminine opposite हमेशा होता है. Just keep this in mind. So that's all for today, students. Thank you. Have a good day.